The footballing world has lost one of its great agents. Mino Raiola has sadly passed away, and we here at TFHD, the whole family, want to pass on the condolences to his families and to all the people who are affected. Chelsea are one of the top clubs in England, the European champions currently. Are they now entering a rebuild phase? Since Roman Abramovich took over Chelsea in 2003, भाई साहब उसने चेल्सी का रंग रूप बदल दिया. He has made Chelsea what they are known for right now. उसने इस क्लब के लिए अपना पैशन दे दिया, पैसे तो डेफिनेटली दिए. It is reported that he has spent around 2 billion euros in signing top players, and not just signing top players मेरे भाई. उसके 21 साल के टेन्योर में Chelsea have won all the major tournaments that they can dream of. And to put things into perspective, Chelsea have won joint best 21 titles alongside Manchester United. City have won 18, Arsenal have won 11, Liverpool have won 10 in the same time frame as Roman Abramovich was at Chelsea. सो अब तुम समझ रहे हो कि चेल्सी को रोमन अब्रामोविच ने क्या बना दिया. इट्स नॉट जस्ट दी मेन फुटबॉल टीम मेरे भाई, वुमेन के ऊपर भी, वुमेन फुटबॉल टीम के ऊपर भी ही स्पेंड अ लॉट. ही मेड देम सच अ ग्रेट टीम इन फुटबॉल. लास्ट ईयर दे वर इन दी वुमेन चैंपियंस लीग फाइनल एंड सिंस 2014 दे हैव वन ओवर 14 टाइटल्स. रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को बेस्ट टैलेंट्स के थ्रू फिल किया. He brought in some great managers. He brought in top talents and top managers as well. 15 managers in a span of 19 years, and भाई हर एक मैनेजर ने डिलीवर किया. Since winning their last Premier League title in 1954 and 1955 season, रोमन अब्रामोविच के अंडर उन्होंने अकेले जाके 5 प्रीमियर लीग की टाइटल जीती हैं, 2 चैंपियंस लीग, 2 यूएफा यूरोपा लीग्स, 1 क्लब वर्ल्ड कप, 5 टाइम्स FA कप विनर्स, 1 यूएफा सुपर कप. तो भाई हर एक चीज उन्होंने उसके अंडर जीता. बट नाउ he'll be gone. And you know what? It's not just about the title. आपको बैकएंड पे काम देखना होगा. what रोमन अब्रामोविच did, जो उसने क्लब की एकेडमी के ऊपर काम किया है, इन्वेस्टिंग so much into those little players. अब तुम कॉबहैम इंस्टीट्यूशन देखे हो चेल्सी का. a lot of players come in through that particular academy, and काफी सारे players from John Terry to Mason Mount, all of these lads have come up and played their game at Chelsea Football Club, and now चीजें चेंज होने वाली भाई. क्लब इज अप फॉर सेल एंड काफी सारी न्यूज निकल के सामने आ रही है, एंड आज के वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट दैट. बट बिफोर, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन. इफ यू वांट टू हैव मच मोर डिटेल इनसाइट अबाउट योर क्लब, अबाउट ऑल द लीग्स अराउंड वर्ल्ड फुटबॉल, डू रिमेंबर टू डाउनलोड वन फुटबॉल एप्लीकेशन so you are up to date with all the latest news surrounding world football. Also, if you want to know about the upcoming fixtures about your team, want to stay in touch with the transfer rumors, the live commentary, the live team sheets and everything, you have to download OneFootball application, and you can find it in the description down below. Click on the link and download OneFootball application from over there. Now let's hop on to the video again. So how is that Chelsea takeover going up till now? Todd Boehly, who is the co-owner of the Los Angeles Dodgers, and he has submitted a bid for Chelsea, 4 billion pounds, and जिसके साथ ही साथ inclusive of 1.5 billion euros that will directly go into the club's development and the stadium infrastructures as well. ये एक ऐसी डील है जो कि probably एक हफ्ते में कंप्लीट हो जानी है, but then you know what, a twist has just come around the corner. अब सीन क्या होता है कि ब्रिटिश बिजनेस टाइकून रैटक्लिफ, द ओनर ऑफ इनियोस, जो कि पेट्रोकेमिकल कंपनी है, and that is ranked 4th best in the whole world, he has submitted a bid of 4.25 billion pounds, जिसमें से 2.5 billion pounds will go directly to Roman Abramovich charity funds, and 1.75 will be utilized for club infrastructures, the signings and everything. But the best thing is that he has agreed to subsidize the club for the next 10 years. रैटक्लिफ ने बोला दिस इज अ ब्रिटिश बिड फॉर अ ब्रिटिश क्लब. अब रैटक्लिफ क्या है? ही इज अ सीजन टिकट होल्डर एट चेल्सी. ही वॉज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बचपन में, बट देन ही टर्न इनटू अ चेल्सी फैन. उन्होंने एक बार पहले बिड करना चाहा था चेल्सी को बाय करने के लिए 2019 में, जब रोमन अब्रामोविच थे ओनर, बट देन ही वाजंट एबल टू साइन. बट देन उस पॉइंट पे ही इन्वेस्टेड 80 मिलियन यूरोज इन नीस. तो अभी सीन क्या चल रहा है? अगर लेट्स से कि रैटक्लिफ इज एबल टू गेट चेल्सी, ही विल हैव टू ड्रॉप नीस. वो एक और क्लब जिसके वो ओनर हैं, बट देन दैट डजंट रियली मैटर बिकॉज वो क्लब ऑलमोस्ट रेलिगेशन पे है, एंड इफ इट गेट्स रेलिगेटेड देन यू नो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको. अब यहाँ पे व्हाट डिड रैटक्लिफ से? ही मेंशन्ड ही हैज नथिंग टू डू विद द मनी. ही इज सोली ओवर हियर टू बिल्ड दिस ब्रिटिश क्लब. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना आप, इनियोस जो एक पेट्रोकेमिकल एजेंसी है, दैट इज बेस्ड इन लंडन. तो वो एक ब्रिटिश कंपनी है, एंड दिस गाय लव्स चेल्सी एज वेल. सो ही सेइंग कि ये मनी से इन्वॉल्व नहीं है, मनी से इंस्पायर्ड नहीं, ही जस्ट वांट्स टू ब्रिंग बैक चेल्सी टू वेयर दे वर. और सबसे अच्छी बात पता है क्या? उसने एक बात बोली कि प्रॉफिट एंड ऑल में उसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं होगा.
बिकॉज ही गेट्स हिज मनी फ्रॉम समवेयर एल्स। एंड ऑब्वियसली यार तुमको पता है यार कि पेट्रोकेमिकल एजेंसी है, उनका इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 2021 में था, इट वाज अराउंड 18.3 बिलियन यूरोज, तो बहुत ही ज़्यादा है पैसा डेफिनेटली। एंड अगर ही कम्स टू चेल्सी, ही गेट्स हिज हैंड्स ओवर चेल्सी, आई बिलीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पैशन टुवर्ड्स चेल्सी ही विल बी एबल टू टेक चेल्सी इन द राइट डायरेक्शन, जैसे कि रोमन अब्रामोविच ने किया। सो अब टुकल इज बाउंड टू स्टे, टुकल कहीं नहीं जा रहे, ही इज गोना बी ओवर हियर, ठीक है। बट बात आती है स्क्वाड की, क्या स्क्वाड कॉम्पिटेंट इनफ है? यू आर लुकिंग एट मैनचेस्टर सिटी, यू आर लुकिंग एट लिवरपूल, उन्होंने अपने स्क्वाड को बहुत इंप्रूव किया है, बट नाउ इट फील्स लाइक दिस इज द टाइम फॉर चेल्सी टू एज वेल इंप्रूव देयर स्क्वाड। अगर गोलकीपिंग पोजीशन की बात किया जाए तो एडवार्ड मेंडी एंड केपा अरिज़ाबलागा दे आर गुड, दे विल डू द जॉब ओवर देयर, बट देन डिफेंस की अगर बात करोगे तो इट इज लुकिंग वेरी वेरी डिप्लीटेड बिकॉज रूडिगर इज गोना लीव, ही इज joining Real Madrid. Andreas Christensen is also about to leave for Barcelona. So that leaves only Thiago Silva, who is 37 by the way, along with Azpilicueta, who has just signed a contract extension of 1 year. So Azpilicueta, Thiago Silva and who else? मलंग सार इज देयर, वो एक यंगस्टर यार, उस पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ पाया सीजन देखते हुए, उसको इस परफॉर्मेंस हैवन रिफ्लेक्टेड हिज स्टार्टिंग लाइनअप प्रेजेंस। चालुबा एक और बंदा है जिसके लिए हम वेरी वेरी एक्साइटेड, बट देन क्या ये बैकलाइन से टुकल खुश होगा? आई डोंट थिंक सो। सो अकॉर्डिंग टू मी दे विल हैव टू मेक एटलीस्ट 2 साइनिंग्स इन द डिफेंसिव एरिया। सो कैसे सॉल्व करें इसको? कौन से वो प्लेयर्स है जो कि हम सजेस्ट करना चाहेंगे फॉर टुकल टू साइन? सबसे पहला नाम याद आता है जूल्स कुंडे का, बिकॉज चेल्सी वो वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिम लास्ट ईयर एज वेल। 60 मिलियन यूरोस की प्राइस लगी है जूल्स कुंडे पे, ही वुड नॉट कम चीप। एंड मैं कह रहा हूं कि अगर 60-70 मिलियन जूल्स कुंडे पे आप स्पेंड करना चाह रहे हो, व्हाई नॉट गो फॉर Matthias de Ligt, जिसकी वैल्यू 80 मिलियन यूरोस है, एंड ही वुड प्रोबेबली वांट अ मूव आउट फ्रॉम यूवेंटस एज वेल। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन टुकल की कौन से प्रोफाइल का प्लेयर ही वुड वांट एट द क्लब। बट एक दो और मेरे पास सजेशंस है यहाँ पे, जैसे कि जॉस्को गॉर्डियोल ऑफ आरबी लाइप्जिग, 20-year-old लेफ्ट फुटेड डिफेंडर, ही इज मेकिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ दिस पर्टिकुलर सीजन, ही हैज हैड अ गुड सीजन। साथ ही साथ Tapsoba ऑफ बायर लेवरकुसन एज वेल, अ राइट फुटेड राइट सेंटर बैक, कैन प्ले इन अ बैक थ्री एज वेल। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ही विल बी नॉट सो चीप, पर 40-50 मिलियन यूरोज उसकी वैल्यूएशन है ट्रांसफर मार्केट। बट स्टिल चेल्सी, आपको पता है यार कि वो ऐसे लो की साइनिंग्स नहीं करती, चेल्सी ब्रिलियंट बड़ी साइनिंग्स करती हैं, एंड डिफेंस के एरिया में पर्टिकुलरली उनको रिक्वायरमेंट है। इफ यू टॉक अबाउट द फुल बैक्स, तो रीस जेम्स राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक बेन चिलवेल। तुमने देखा इस सीजन बेन चिलवेल का ना होना कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा उनके लिए द होल सीजन। पूरे टाइम चेल्सी के फैंस रोते रहे कि उनके पास बेन चिलवेल एक एब्सेंस है। मार्कस अलोंसो वाज देयर बट ही वाजंट एबल टू डू द जॉब। एमरसन इज ओवर देयर एट वो लोन पे अभी लियोन पे, आई डोंट नो इफ ही इज गोना कम बैक एज वेल। तो अब बचता कौन है? Azpilicueta कैन प्ले ओवर देयर, Ruben Loftus-Cheek can play over there, but then you need a good backup at that right wing back position. So I think according to me they will have to make some decent backup signings for that right wing back position. और सबसे importantly रीस जेम्स को या तो कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करो या तो फिर रियल मैड्रिड को एकदम टाटा बाय बाय मना कर दो यार, बिकॉज रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग रीस जेम्स एज वेल। बट एक जगह और सीरियस इश्यू है, मिडफील्ड। सही बताऊं मैं, आई डू नॉट लाइक द मिडफील्ड ऑफ चेल्सी, द डेप्थ ऑफ इट, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज आपके पास है कोवाचिक, आपके पास है कांटे एंड जॉर्जिनियो। इनमें से 2 प्लेयर्स हैं जो कि 30 क्रॉस कर चुके हैं अपने, कांटे 31, जॉर्जिनो 30। सो आर यू वांटिंग टू बेस योर फ्यूचर ऑन दीज 2 प्लेयर्स? आई वुड से नो, गेट सम डेप्थ ओवर देयर एज वेल। बिली गिलमोर नॉर्विच सिटी पे लोन पे थे, आई बिलीव कि ऑल राइट, ठीक है नॉर्विच रेलीगेट हो रही है, had such a great performance, but then Billy Gilmore last year at Chelsea was having a good time. So मुझे लगता है कि अगर टुकल उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट दिखाए तो he would develop into a very good player and Chelsea would be saved a few bucks not to spend on a CDM, and just because he's an academy player and everything, पता है उसको कि कैसे खेलना है चेल्सी पे, एंड टुकल के अंदर ही वुड बी रियली इंप्रूविंग। तो डूइंग दिस दे वुड बी स्पेयर्ड ऑफ साइनिंग द प्लेयर्स। बट अगर आप चाहते हो मैं आपको ऑप्शन दूं तो यहाँ पे आंख बंद करके मैं एक नाम लेने वाला हूँ, चुआमनी। दैट गाय वुड बी परफेक्ट फिट फॉर चेल्सी अगर उनको जॉर्जिनो के साथ उस प्लेस करना है। इवन विद बिली गिलमोर ही कैन प्ले ओवर देयर, इवन विद कोवाचिक कैन ऑल्सो ही कैन प्ले ओवर देयर। सो साउल का फ्यूचर अनसर्टेन है, आई डोंट नो बार्कली का क्या होगा, इट्स वेरी अनसर्टेन। सो दैट प्रोफाइल, पर्टिकुलर प्रोफाइल इज नीडेड इन दिस टीम। अब जो मेरा दूसरा कंसर्न है दैट इज सराउंडिंग लाकाका। बिल्कुल भाई, 100 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट थी भाई, दांड़ हो गई सच बताऊं तो। आई डू नॉट थिंक कि 1 साल और लुकाकू को देना चाहिए, होपिंग दैट ही वुड फिट इनटू द सिस्टम। इस साल बहुत ट्राई किया गया, नहीं फिट हुए, बट देन आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। उसकी स्टिल मार्केट वैल्यू 85 मिलियन यूरोज है, बट आई डू नॉट थिंक कि कोई भी क्लब रेडी होगा 50 मिलियन यूरो से ऊपर देने के लिए लुकाकू को। सो व्हाट शुड चेल्सी डू? शुड दे कैश इन ऑन हाफ द प्राइस दैट दे हैव गॉट लुकाकू फॉर, और शुड दे ट्रस्ट हिम फॉर अनदर सीजन?
इतना हाई वेज का प्लेयर अपने बेंच पे रखना दैट इज नॉट वाइज। तुम अगर देखो कि चेल्सी के फॉरवर्ड लाइन में 3 पोजीशंस में देयर आर 6 प्लेयर्स फाइटिंग फॉर दैट, एंड इसमें मैंने कैनेडी को भी इन्वॉल्व नहीं किया एंड गैलेगर लोन से वापस आएंगे उनको भी इन्वॉल्व नहीं किया, एंड आई थिंक कि गैलेगर इज वन गाय जो कि पक्का से चेल्सी पे नेक्स्ट सीजन खेलने वाला है। सो मेसन माउंट है, जीएच है, काई हेवेट्स है, पुलिसिच है, टीमो वर्नर है, लुकाकू है, कैलम हडसन-ओडोई है, भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं जस्ट फॉर दोज 3 पोजीशन, एंड इसीलिए चेल्सी को एक कंटिन्यूअस फॉरवर्ड 3 कनेक्शन नहीं मिल पाता है। दे आर गोइंग विथ माउंट, टीमो वर्नर, काई हेवेट्स, समटाइम्स दे आर चेंजिंग, तो बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच होता है। फॉर हैविंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स यू नीड टू हैव वन कंसिस्टेंट लाइनअप, एंड आई स्टिल डोंट नो कि टुकल का फेवरेट लाइनअप क्या है। So according to me, let me be very blunt over here. I think ZH and Pulisic में से एक बंदा है लीव करेगा. The players I think they are bound to be here at Chelsea next season. Mount, Kai Havertz, Timo Werner most probably and Callum Hudson-Odoi पक्का से रहने वाले हैं along with Gallagher as well. अब ब्रोहा के बारे में बात आती है. I would rather see Broha be at Chelsea on the bench, come off the bench and play his game because that is one guy जो मुझे लगता है बेंच रोल सफाइस रहेगा वो. बाकी लुकाकू को भाई अगर उठाओ बेच सकते हो तो sell that guy, that would really help you. तो that is the way in which I think this Chelsea team should be rebuilding. आगे एक ट्रांसफर मार्केट, 2 ट्रांसफर मार्केट, मुझे लगता है कि 2 ट्रांसफर मार्केट लगेंगे चेल्सी को पूरा स्क्वाड रिबिल्ड करने में, एंड ये बहुत जरूरी है. इफ नॉट नाउ, आगे 1 साल बाद तुम देखना हम यही वीडियो दोबारा बना रहे होंगे, बात कर रहे होंगे. सो टुकल एंड whoever the owners or the management would come, they'll have to take care of this one particular thing. इसको निगलेक्ट नहीं करना है. टेक ओवर की चीज़ों में ये चीज़ों को नहीं भूलना है. दैट स्क्वाड इज वेरी वेरी मस्ट इफ चेल्सी आर टू कम्पीट एट दैट लेवल. रोमन अब्रामोविच ने जो चेल्सी के लिए किया है, द डायरेक्टनेस ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट वाज एब्सोल्युटली इमैकुलेट, एंड आई होप कि जो भी नई पार्टी आएगी दे विल बी एज स्टेडली इन्वेस्टेड एज रोमन वाज इन दिस टीम. टुकल के लिए भाई I'm up for him. So let's see कि next season Chelsea क्या signings करती है, and आपको क्या लगता है, what are the players that you want to see at Chelsea. कोई other options आपके पास है तो do let me know in the comments down below. वीडियो पसंद आया तो do drop a like and subscribe to our channel. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.